Hi everyone, welcome to the channel Simple Concepts. I am Rashmita, your educator for the subject history, and I'm back with another lecture. And in this lecture, we are going to talk about administrative policies of British. तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल ऑफ द इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज जो ब्रिटिश ने अप्लाई की इंडिया के ऊपर अपना एम्पायर एक्सपैंड करने के लिए। ऑल्दो ब्रिटिशर्स की बहुत सारी पॉलिसीज़ थी, लेकिन हम इसमें सिर्फ कुछ जो बहुत इम्पॉर्टेंट थी उन्हीं पॉलिसीज़ को डिस्कस करेंगे। लाइक इंडिया की आई एम सॉरी ब्रिटिशर्स ने जो इंडिया के अंदर अपना एम्पायर एक्सपैंड करने के लिए पॉलिसीज़ यूज़ की थी वो अलग थी, और जो उन्होंने अपना एम्पायर इंडिया से बाहर एक्सपैंड करने के लिए यूज़ की थी वो अलग थी। दोज वर कॉल्ड द फॉरेन पॉलिसीज़ ऑफ ब्रिटिश इंडिया। सो इस पे हम सिर्फ उन ही पॉलिसीज़ पे फोकस करने वाले हैं जिनकी वजह से इंडिया में ब्रिटिश का एम्पायर बढ़ता चला गया। So we have already discussed in our previous lectures about the conquest of Punjab, conquest of Maratha Empire, conquest of Mysore, conquest of Bengal. We have also discussed all of the important wars like Anglo-Mysore War, Anglo-Maratha Wars, Anglo-Sikh Wars. Okay, also Battle of Buxar, Battle of Plassey, which are the two most important battles. So if you want to watch those videos, you can go to our channel Simple Concepts and you will get all of those videos there. Also you can join our Telegram group. तो उस ग्रुप में आपको ये सब लेक्चर्स के नोट्स मिल जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएंगी इन सब लेक्चर्स की, और उसमें हम बहुत सारे क्विज भी प्रोवाइड करते हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। सो प्लीज़ जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। अगर आपको वो डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलता है तो यू कैन जस्ट गो टू योर टेलीग्राम एंड टाइप सिंपल कॉन्सेप्ट्स यूपीएससी एंड you will get the group. So let us begin with the lesson. So before coming to the topic, there is a summit to transform your UPSC which is going to held on June 26, 27 and 28, 2020. Okay, so this whole summit is for 3 days and you will get 56 talks and panel discussions, 56 iconic speakers, hands-on workshops, etc. So this is organized by An Academy. So we have already uploaded some of the intro videos of all of the personalities who will be attending these summit for 3 days. Some of them are Dr. Shashi Tharoor, Dr. Kiran Bedi, Mr. Kapil Dev, Shri Pranav Mukherjee, Mr. Jairam Ramesh, and Mr. Rajkumar Rao. So you can register for free if you register right now. So please don't miss it and register. Also, this whole summit is very important for your UPSC preparation because you will get a chance to interact with many leaders, as you can see on the screen. Okay, so these are the leaders you can discuss about your preparation. You can take encouragement from them. You can ask all of the problems that you are facing or the problems that these people have faced while they were preparing for the same exam. So you can actually have a meaningful discussion over this platform. So I would recommend to register for it right now. So these are the heads under which you will be getting different events. So first is why UPSC. Okay, why should you choose UPSC? You will get around 11 events for this topic. 8 events will be for preparation journey. 4 events will be for An Academy, a perfect study partner. Like why should you choose An Academy as your study partner and why not other coaching institutes or any other platform? Also, you will get around 3 events on the topic Be a Leader, 2 events for Aftermath of Failure, okay, and 34 workshops and discussions. So, discussion is the main basically, what you will be getting in this summit. You will be able to discuss your issues with the different personalities that will be coming on this platform.
Also there are three mega batches which have been started from 15th of June for UPSC CSE. These are the detail of the batches. First one is available in bilingual. इसमें आपको English और हिंदी दोनों language में GS पढ़ाया जाएगा. सेकेंड वाले में आपको हिंदी में पढ़ाया जाएगा और थर्ड में आपको इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करवाया जाएगा. सो व्हाट ऑल यू विल बी गेटिंग इन दीज बैचेस इज full syllabus coverage, prelims and mains test series with analysis, dedicated doubt clearing sessions, and also tips for your interview. And you can use our code SIMPLEYT अगर आपको 10% डिस्काउंट चाहिए तो. आपके जो टोटल अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा एक साल के लिए उसके ऊपर एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप ये कोड यूज़ करते हैं तो. ऑल्सो दिस इज़ आर कॉन्टैक्ट नंबर. तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है कि आपको कौन से एजुकेटर के अंडर पढ़ना चाहिए अन अकेडमी पे या फिर आपको क्यू प्लस कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ सजेशन और इफ़ यू वांट कि आप हमारे अंडर पढ़े ऑन द प्लेटफॉर्म अन अकेडमी, सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर. या फिर आपका कोई भी और रेलिवेंट डाउट है इन सब चीज़ों से रिलेटेड, लाइक योर यूपीएससी प्रिपरेशन, why should you choose an academy, what are the benefits that an academy will provide you जो आपको बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में नहीं मिल सकता. So you can contact on the number 9689638048 and we will try our best to resolve all your queries. So with this, let us get started with the lesson. Okay. So अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आता है मेथड ऑफ एक्सपेंशन. ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया में अपना एम्पायर को एक्सपैंड करने के लिए दो तरीके अपनाए. पहला था एनेक्सेशन बाय वॉर और दूसरा था एनेक्सेशन बाय एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म एंड डिप्लोमेसी. सो एनेक्सेशन एज यू ऑल नो कि वो अपने लिए एक टेरिटरी कार्व आउट कर लेते थे और उस पर पूरा का पूरा ब्रिटिश एम्पायर का हक होता था. ठीक है, वेदर इट बी रेवेन्यू जनरेशन हो या फिर वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर हो, उन सब के ऊपर सिर्फ ब्रिटिशर्स का ही राज चलता था. So how did they used to annex those territories for themselves? ठीक है, because everything has a procedure. कोई भी आप पॉलिसी ले लो या कुछ भी ले लो, हर चीज़ को करने का एक प्रोसीजर होता है. सो द फर्स्ट वन वॉज एनेक्सेशन बाय वॉर. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, जैसे मैसूर में हुआ था या बंगाल में हुआ था. ठीक है, उन्होंने जो बंगाल का एरिया एक्वायर किया था, इट वॉज बाय वॉर. तो सबसे पहले या तो वो वॉर डिक्लेयर कर देते थे, वॉर होती थी, एंड बिकॉज दे हैड सच अ ग्रेट आर्मी एंड यू नो कैनन्स एंड आर्टिलरी, इतना अच्छा था उनके पास और इंडियन लीडर्स के पास नहीं था, तो इसलिए वो हमेशा वॉर्स में जीत जाते थे. एंड देन दे यूज्ड टू साइन ट्रीटीज विद द रूलर ऑफ दैट एरिया और वो उस सेक्शन को या उसमें से जो मेन इंपॉर्टेंट टेरिटरीज होती थी वो उसको अपने नाम करवा लेते थे. The second method was annexation by administrative mechanism and diplomacy. So इसमें क्या होता था कि वो स्ट्रेट अवे वॉर डिक्लेयर नहीं करते थे. व्हाट दे यूज्ड टू कि वो अपने टैक्टिक्स चलाते थे रूलर्स के ऊपर या एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म चलाते थे. वो क्या करते थे इसके अंडर कि वो अपना बेसिकली मदद का हाथ देते थे रूलर्स को कि हम आपकी मदद करेंगे अगर आपके ऊपर कोई और रूलर वॉर डिक्लेयर करता है या आप किसी प्रॉब्लम में आते हो, सो वी विल एक्चुअली सपोर्ट यू. सो दिस वॉज काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म एंड डिप्लोमेसी दैट दे यूज्ड टू अप्लाई ऑन द इंडियन रूलर्स. और बाद में वो पॉलिसी बढ़ बढ़ के वो डिप्लोमेसी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती थी कि दे यूज टू प्रेशराइज दैट रूलर कि उनको बेसिकली लास्ट में अपना कोई ना कोई रीजन इनके नाम करना ही पड़ता था. ये ऐसी कंडीशंस क्रिएट कर देते थे जिसमें इम्पॉसिबल हो जाता था उस रीजन के रूलर के लिए कि वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से चला सके. और अगर उसको इंग्लिश की हेल्प चाहिए होती थी अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, तो उसको फाइनली अपना एक टेरिटरी या एरिया इंग्लिश को देना पड़ता था फॉर रूलिंग. So let us see what are the important policies जो ब्रिटिशर्स ने अप्लाई की इंडिया पे. ठीक है, अलग अलग रूलर्स आए, अलग अलग ऑफिशियल्स आए, उन्होंने अपनी अपनी अलग टैक्टिक्स निकाले, अपनी अलग पॉलिसीज निकाली और उन्हीं के बारे में अब हम बात करेंगे.
तो सबसे पहली पॉलिसी है पॉलिसी ऑफ रिंग एंड फेंस. सो पॉलिसी ऑफ रिंग एंड फेंस was introduced by Warren Hastings. He was the first Governor General of India, as we all know. So this policy suggested the creation of buffer zone to protect companies frontier. So इसमें क्या होता था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो बेसिकली किसी एरिया को एक बफर जोन बना देते थे. जैसे अगर उनकी बीच में टेरिटरी है, ठीक है, तो वो उसके चारों ओर जितने भी उसके नेबर्स होते थे उन सबको बफर जोन्स बना देते थे. बफर जोन मतलब वो उनको प्रोटेक्ट करते थे. ओके, इन अदर वर्ड्स इट वाज द पॉलिसी ऑफ डिफेंड ऑफ देयर नेबर्स. तो अगर आपका ये एरिया है और आपके 3-4 नेबर्स हैं, अगर आपने उन 3-4 नेबर्स को ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दी, अगर कोई बाहर से आके उन्हीं के ऊपर हमला नहीं करेगा तो वो आपकी टेरिटरी तक नहीं पहुंच सकता. सो ये समरी है इस रिंग एंड फेंस पॉलिसी की, ठीक है. अंडर दिस पॉलिसी द ब्रिटिश यूज्ड टू प्रोवाइड मिलिट्री असिस्टेंस टू देयर नेबर्स फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वेजन ऑन द एक्सपेंस ऑफ द रूलर ऑफ दैट एरिया. तो वो क्या करते थे, उनके जितने भी नेबर्स होते थे उनके पास जाते थे एंड दे यूज्ड टू टेल देम कि वी विल सपोर्ट यू. अगर कोई एक्सटर्नल पावर आके आपको इन्वेड करने की कोशिश करती है तो वी विल प्रोवाइड यू द मिलिट्री असिस्टेंस. ओके, बट उसका उस मिलिट्री असिस्टेंस का जो पैसा होगा वो उस एरिया के रूलर को ही उठाना पड़ेगा. जितना भी खर्चा आएगा उस चीज का वो उस एरिया के रूलर को उठाना पड़ेगा. तो इसमें क्या होता था, बेसिकली जो उस एरिया का रूलर होता था उसको बोला जाता था कि आप अपनी एक मिलिट्री की जो टुकड़ी है उसको अलग रखो. उसको जो इंग्लिश ऑफिशियल्स हैं, जो इंग्लिश ऑफिशियल्स जो मिलिट्री में हाई पोजीशन पे थे, वो लोग आके उस टुकड़ी को ट्रेन करते थे अकॉर्डिंग टू देयर ओन प्रोसीजर. ठीक है, वो बिल्कुल ब्रिटिशर्स की मिलिट्री की तरह उनको ट्रेन कर देते थे. तो वो क्या थी, दे यूज टू परफॉर्म बेटर इन वॉर्स. लेकिन वो जो ऑफिसर आ रहा है और आपकी मिलिट्री को ट्रेन कर रहा है, तो उस ऑफिसर को उस एरिया का जो लीडर है या उस एरिया का जो रूलर है वो उसका सारा एक्सपेंस उठाएगा, उसको पैसे देगा. सो दिस मिलिट्री ऑफिशियल हु यूज टू कम टू ट्रेन द आर्मी ऑफ दैट रूलर, ही वॉज लाइक अ टीचर. ठीक है, तो अगर आपको कोई टीचर पढ़ाने आ रहा है तो आपको उसको पे करना पड़ेगा ना, और जितना भी वॉर का एक्सपेंस होता था वो भी रूलर को उठाना पड़ता था. तो इस चीज से ना इनका डबल फायदा हो रहा था. एक तो इनकी खुद की टेरिटरी प्रोटेक्ट हो रही थी, ऊपर से इनको अगर जो रूलर्स थे इनके आसपास, जो इनके नेबर्स थे, उनके ऊपर अगर हमला हो रहा था तो इनको सिर्फ मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड करना था जिनका इनको पैसा मिल जाता था, और सारा मिलिट्री एक्सपेंस जो था या वॉर एक्सपेंस था वो उस रूलर को उठाना पड़ता था. सो बेसिकली ब्रिटिशर्स का दोनों तरफ से फायदा हो रहा था कि उनकी टेरिटरी भी प्रोटेक्ट हो गई और उनका पैसा भी खर्च नहीं हुआ. तो ये जो पॉलिसी थी ना रिंग एंड फेंस की, ये ब्रिटिशर्स ने यूज़ की थी मराठास के अगेंस्ट और मैसूर के अगेंस्ट. मतलब मराठा और मैसूर को कैप्चर करने के लिए, उसका पूरा एरिया कैप्चर करने के लिए इन द लेटर टाइम ब्रिटिशर्स ने रिंग एंड फेंस की पॉलिसी यूज़ की थी. ऑल्सो जो ब्रिटिशर्स थे दे वर एक्चुअली हैविंग डेंजर विद द अफगानिस्तान इन्वेजन. जैसे अहमद शाह अब्दाली थे, वो आके बार बार इन्वेड कर रहे थे इंडिया को. सो दे एक्चुअली वांटेड कि कैसे भी करके ये जो फॉरेन इन्वेजन्स हो रहे हैं इनको रोक लिया जाए और स्पेशली अफगानिस्तान को रोक लिया जाए. सो व्हाट दे डिड वाज कि उन्होंने ये जो एरिया था इंग्लिश प्रोविंस का, ठीक है, दिस वॉज इंग्लिश प्रोविंस, जो ये मैंने लाइन बनाई है, दिस होल बंगाल एरिया वॉज द इंग्लिश प्रोविंस. और जो अफगानिस्तान के जो रूलर थे वो यहाँ से इन्वेड करते थे. सो व्हाट इंग्लिश डिड वाज कि उन्होंने अवध का जो एरिया था इसको बफर जोन बना दिया था. मतलब अवध के रूलर से एक ट्रीटी साइन कर ली थी एंड दे एक्चुअली उनके साथ ये एक सॉर्ट ऑफ एग्रीमेंट कह लीजिए वो बना लिया था. सो दिस वॉज एक्चुअली टेकन एज द बफर जोन. फिर उन्होंने उनकी मिलिट्री को ट्रेन किया और अवध के जो रूलर थे उन्होंने पूरा का पूरा खर्चा उठाया, पूरा मिलिट्री एक्सपेंस उठाया अगर अहमद शाह अब्दाली या कोई और अफगानिस्तान इन्वेडर
यहाँ पे इंडिया पे अगर इन्वेट करने की कोशिश करता तो, और जो इंग्लिश टेरिटरी थी वो तो अपने आप बच ही जाती, बिकॉज देयर वाज नो अदर ऑप्शन। ठीक है, अगर उन्होंने यही पूरा एरिया प्रोटेक्ट कर लिया है तो अफगानिस्तान के पास और कोई एरिया नहीं है इन्वेट करने के लिए। So this was the policy of ring and fence. I hope you all have understood this policy very well. So let's jump on to next policy, which is subsidiary alliance. So subsidiary alliance was introduced by Wellesley, Lord Wellesley. दिस वॉज एक्सटेंशन ऑफ रिंग एंड फेंस पॉलिसी। तो जो अभी हमने पॉलिसी डिस्कस की है, दिस सब्सिडरी अलायंस वॉज अ काइंड ऑफ एक्सटेंशन के बेसिक वही था रिंग एंड फेंस का, बस उसमें कुछ एडिशंस कर दिए गए थे और इस पॉलिसी को नाम दिया गया सब्सिडरी अलायंस। अंडर दिस पॉलिसी द अलाइंग इंडियन स्टेट वॉज कंपेल्ड टू एक्सेप्ट permanent stationing of British force within his territory and to pay subsidy for its maintenance. तो इस ट्रीटी के अंदर इस पॉलिसी के अंडर क्या डिसाइड हुआ, दैट एवरी इंडियन स्टेट, मतलब जिस भी स्टेट से वो ये पॉलिसी एक्सेप्ट करवा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हैदराबाद से, ओके तो अगर हैदराबाद एक्सेप्ट करता है कि ओके आई विल अबाइड बाय दिस पॉलिसी सब्सिडरी अलायंस, तो ये अलाई स्टेट हो गया कंपनी का, तो हैदराबाद को अपने स्टेट में एक कंपलसरी परमानेंट स्टेशनिंग करनी थी, किसकी, ब्रिटिश फोर्सेस की। मतलब उसको कंपलसरी हो गया था वहाँ के रूलर को कि कुछ जो ब्रिटिश फोर्सेस है लाइक 1000 ट्रूप्स और समथिंग लाइक दैट, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल लाइक 1000 ट्रूप्स, तो उसको अपने एरिया में 1000 ब्रिटिशर्स के ट्रूप्स को रखना ही था और उनको सब्सिडी देनी थी फॉर इट्स मेंटेनेंस, बिकॉज उस मिलिट्री का जो मेंटेनेंस है वो कर तो ब्रिटिशर्स ही रहे थे, तो उनको बेसिकली क्या करना था, उनको एक सब्सिडरी प्रोवाइड करनी थी, उनको बेसिकली कुछ अमाउंट पे करना था ब्रिटिशर्स को फॉर द मेंटेनेंस ऑफ दैट आर्मी, जो कि ब्रिटिशर्स ही उस स्टेट में लगा रहे हैं। Also under this, Indian rulers also has to agree to keep British resident in his court. मतलब जो रूलर के साथ ये अलाई हो रहा है, जो रूलर सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट कर रहा है, उस रूलर को अपने कोर्ट में एक ब्रिटिश रेजिडेंट को रखना कंपलसरी था। तो इस चीज़ से क्या होता था कि ब्रिटिशर्स को इंटरनल मैटर में क्या चल रहा है या फिर उस राजा के कोर्ट में क्या चल रहा है, उन सब का पता लगता रहता था। Also, ruler could not employ any European without the prior approval of British. कि जो भी वो रूलर था जो सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट कर रहा है, वो किसी और यूरोपियन को एम्प्लॉय नहीं कर सकता था, किसी भी नौकरी में नहीं रख सकता था, ना ही कोई ट्रीटी कर सकता था, मतलब कोई रिलेशन नहीं रख सकता था किसी भी यूरोपियन के साथ। अगर उसको किसी और यूरोपियन के साथ कोई भी ट्रेड रिलेशन रखना है या कोई और काम है तो उसको ब्रिटिश से प्रायर अप्रूवल लेना पड़ता था। अगर ब्रिटिशर्स ने वो अप्रूवल पहले नहीं दिया है और उसके बाद भी उस रूलर ने किसी और यूरोपियन पावर के साथ कोई अलाइनमेंट या फिर कोई ट्रीटी साइन कर ली है, तो इसको काइंड ऑफ बहुत एग्रेसिवली लिया जाता था कंपनी के द्वारा, मतलब इट वॉज एक्चुअली कंसिडर्ड एज वायलेशन ऑफ दिस ट्रीटी। He could not negotiate with any other ruler without the permission of Governor General. Also इसमें क्या था कि वो जो स्टेट था वो किसी और रूलर के साथ, इंडिया के ही किसी और रूलर के साथ कोई पैक्ट नहीं बना सकता था, कोई नेगोशिएशन नहीं कर सकता था किसी एरिया को लेके विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नर जनरल। अगर उसको किसी ट्रीटी को लेके कोई दो स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट है तो उस स्टेट को सबसे पहले गवर्नर जनरल की परमिशन लेनी पड़ती थी, उसके बाद वो कोई एक्शन ले सकता था। Also, subsidiary alliance brought immense gains. Over 1000 small and big states of India signed the subsidiary alliance. So, इस treaty से क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा gains किए ब्रिटिशर्स ने। ओवर 100 स्मॉल एंड बिग स्टेट्स ऑफ इंडिया साइंड सब्सिडरी अलायंस, और जो लोग
साइन नहीं करते थे खुद की मर्जी से, उनके ऊपर ऑब्वियसली प्रेशर क्रिएट किया जाता था ताकि वो लोग सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट कर ले। तो ये जितनी भी कंडीशंस थी कि रूलर ये नहीं करेगा वो नहीं करेगा, इसके बदले में ब्रिटिशर्स क्या करते थे, वो बोलते थे आप सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट करो और हमारी सारी कंडीशंस मानो, उसके बदले में वी विल गिव यू प्रोटेक्शन। अगर आपके ऊपर कोई और हमला होता है या आपका किसी के साथ, किसी और स्टेट के साथ कोई भी डिस्प्यूट है, सो वी विल हेल्प यू इन योर वॉर एंड वी विल नॉट इंटरफेयर इन योर इंटरनल मैटर्स। वी नो दैट दिस वॉज नॉट ट्रू, बट उन्होंने इस ट्रीटी के अंडर, इस पॉलिसी के अंडर यही शर्त रखी थी कि आप हमारी शर्तें मानो एंड वी विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द आर्मी ऑफ अदर रूलर्स एंड वी विल ऑल्सो नॉट इंटरफेयर इन योर इंटरनल मैटर्स. So, which were the states that accepted subsidiary alliance? So, it was Nizam of Hyderabad, रूलर ऑफ मैसूर. एज यू ऑल नो, टीपू सुल्तान को हराने के बाद जो हिंदू रूलर को ब्रिटिशर्स ने बिठाया था, उन्होंने सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट किया था. नवाब ऑफ अवध एंड द पेशवा, और भी बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स थे जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट किया था. So first state which actually accepted the subsidiary alliance was Nizam of Hyderabad. This question has been asked many times in many exams. Okay, which was the first state which accepted subsidiary alliance? So it was Nizam of Hyderabad. Okay. Stages of application of subsidiary alliance. So now we will see कि जो subsidiary alliance था वो कितनी stages में apply होता था. What was the procedure subsidiary alliance को apply करने का? So on first stage, at this stage, company offered a friendly hand to the Indian state and promised to fight the war in which the state is engaged. तो वो क्या करते थे कि जब उन्हें किसी स्टेट के साथ सब्सिडरी अलायंस बनाना है, तो वो स्टेट जिस भी वॉर में उलझा होता था, ठीक है, या अगर वो किसी और के साथ फाइट में है, तो क्या करते थे अंग्रेज, एक फ्रेंडली हाथ बढ़ाते थे कि वी विल हेल्प यू इन योर फाइट. ओके. The second stage was consist of making a common cause with the friendly state and placing its own soldiers in the field with the soldiers of the respective state. तो इस स्टेज में क्या होता था, दे यूज टू मेक आउट अ कॉमन कॉज. मतलब फॉर एग्जाम्पल एक स्टेट है, वो किसी और स्टेट के साथ एक वॉर में है, तो अंग्रेजों ने बोला कि हम आपकी हेल्प करेंगे, और वो बोलते थे कि देखिए हमारा भी उस स्टेट से डिस्प्यूट है जिससे आपका झगड़ा चल रहा है, तो एक काम करते हैं, हम दोनों मिलके उस स्टेट को हराने की कोशिश करते हैं, हम आपको अपने सोल्जर्स दे देते हैं और कुछ आप अपने सोल्जर्स रख लीजिए और हम दोनों मिलके उनके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे. तो इस तरीके से वो क्या करते थे, वो अपने सोल्जर्स को उस टेरिटरी में प्लेस कर देते थे अलग अलग जगह पे. फिर आती है थर्ड स्टेज. सो एट दिस स्टेज इंस्टेड ऑफ सोल्जर्स मनी वॉज आस्क्ड एंड द कंपनी प्रॉमिस टू रिक्रूट एंड ट्रेन एंड मेंटेन अ फिक्स्ड नंबर ऑफ सोल्जर्स who would be available for the protection of the ruler and its family from the aggressors in lieu of fixed amount of money. So इस stage पे क्या होता था कि वो इंस्टेड ऑफ सोल्जर्स, पहले तो ये था सेकंड स्टेज पे ना कि कुछ आप अपने सोल्जर्स दीजिए, कुछ हम अपने सोल्जर्स देते हैं और फिर हम उनके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे. लेकिन थर्ड स्टेज पे आके अंग्रेज बोलते थे कि हमको आपके सोल्जर्स नहीं चाहिए, वी विल प्रोवाइड यू विद आवर ओन आर्मी, हम अपनी आर्मी से आपकी प्रोटेक्शन करेंगे, बट यू हैव टू गिव अस मनी बिकॉज वी नीड मनी. अगर हमको और लोगों को अपनी आर्मी में रखना है या उनको ट्रेन करना है या इक्विपमेंट्स लेने हैं, तो आप हमें उसका पैसा दो और हम लोग इंश्योर करेंगे कि एक अच्छी आर्मी डेवलप हो जाए और एक अच्छा आर्टिलरी उनके पास आ जाए. ठीक है. और वो ये भी प्रॉमिस करते थे उस रूलर को कि अगर कल को ऐसी सिचुएशन आती है जब आपकी प्रोटेक्शन की बात आएगी, आपकी फैमिली की प्रोटेक्शन की बात आएगी, तो हम आपकी फैमिली को प्रोटेक्शन देंगे, इट विल बी आवर फोरमोस्ट प्रायोरिटी, और उसके बदले में आपको हमें कुछ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी देना पड़ेगा. दिस वॉज द थर्ड स्टेज. नाउ द फाइनल स्टेज, द मनी और द प्रोटेक्शन फी वॉज फिक्स्ड एट अ हायर रेट mostly, and when the state failed to pay that amount, the company used to ask to secede certain parts of the territory. फिर लास्ट में क्या होता था, वो जो पैसा मांगते थे, that fixed amount of money for the protection of that ruler,
वो मनी इतना हाई फिक्स किया जाता था कि आप हमें 5 लाख दो, या उस टाइम बहुत होते थे 5 लाख, ठीक है, या आप हमें 1 करोड़ दो, तब हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। तो बेसिकली क्या होता था कि वो प्रोटेक्शन फी जो था वो इतना हाई रेट पे फिक्स कर दिया जाता था कि वो रूलर उतना पैसा नहीं दे पाता था कंपनी को। फिर कंपनी क्या कहती थी कि ठीक है, सिंस यू आर अनेबल टू पे अस द अमाउंट, तो आप एक काम करो, आप हमें अपना टेरिटरी का एक पार्ट दे दो और हम आपसे पैसा नहीं मांगेंगे। तो वो पैसे के बदले में फिर उसका टेरिटरी का एक सर्टेन पार्ट मांग लेते थे और वो वहां पे अपना राज शुरू कर देते और धीरे धीरे करके वो पूरे के पूरे स्टेट को अपने अंडर ले लेते थे। So these were the 4 stages of the application of subsidiary alliance. I hope you have understood each and every stage perfectly, because this is very important. Subsidiary alliance से almost like पूरा इंडिया पे उन्होंने subsidiary alliance और doctrine of lapse से ही conquer किया था। So moving on to next very important doctrine, that is doctrine of lapse. So this doctrine was introduced by Lord Dalhousie. So if you all know, Lord Dalhousie was a hardcore expansionist. ठीक है, वो आए ही इंडिया इस मोटो से थे कि जितना एक्सपांशन हो सकता है ब्रिटिश एम्पायर का, वो उतना एक्सपांशन करेंगे बाय दिस और बाय दैट, चाहे उनको टैक्टिक्स खेलने पड़े या फिर अनफेयर मीन्स यूज करने पड़े, बट ही वॉज अ हार्ड कोर एक्सपांशनिस्ट। और इनके टाइम में एक्सपांशन हुआ भी, काफी एक्सपांशन हुआ। So this doctrine stated that the adopted son could be the heir to his foster father's private property but not the state. So इस डॉक्ट्रिन के अंडर ये रूल था कि अगर किसी रूलर का खुद का बेटा नहीं है या खुद का कोई हेयर नहीं है, ठीक है, कोई बच्चा नहीं है, तो अगर वो किसी लड़के को अडॉप्ट करता है, किसी बच्चे को अडॉप्ट करता है, तो वो अडॉप्टेड सन जो है वो अपने फॉस्टर फादर, मतलब जिन्होंने उसको गोद लिया है, उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे पूरा हक रखता है। लेकिन वो जो स्टेट के ऊपर उसके फादर रूल करते थे, उस पे उस अडॉप्टेड सन का कोई शेयर नहीं है, कोई हक नहीं है। It is the power of the British to decide whether to make that adopted son the ruler or to annex that state. So अगर ऐसी कोई कंडीशन क्रिएट होती है उस स्टेट में जहाँ पे कि एक अडॉप्टेड सन रूल करना चाहता है स्टेट पे, तो अल्टीमेट पावर ब्रिटिश की होगी कि ब्रिटिशर्स डिसाइड करेंगे कि क्या तो या तो उस लड़के को, वो जो अडॉप्टेड सन है, उसको उस एरिया का रूलर बनाना है या उस स्टेट को वो अनेक्स करेंगे। ठीक है, ये पावर सिर्फ ब्रिटिशर्स के पास थी। और बाय दिस राइट, इट वाज नॉट दैट सन्स राइट कि नहीं ये मेरे फादर की लाइक टेरिटरी है, तो मैं अडॉप्टेड सन हूँ तो ये मेरी टेरिटरी हुई, ऐसा नहीं था। उसके ऊपर ब्रिटिशर्स ही डिसाइड करते थे कि वेदर दैट अडॉप्टेड सन विल बी द रूलर और दे विल अनेक्स द स्टेट। The doctrine was stated to be on Hindu and Indian customs. So ये बोला जाता था कि this particular doctrine was based on Hindu law and Hindu customs. ठीक है, जो Indian customs थे और हिंदू लॉ था उसके ऊपर ये पूरा का पूरा डॉक्ट्रिन बेस्ड है। बट दिस वॉज नॉट ट्रू, लाइक आर like ancient text was actually like not clear upon this topic, this particular topic, whether a ruler's adopted son can rule over the territory, whether it is his right or not. Though this policy is attributed to Lord Dalhousie, but he was not the originator of this. It was a coincidence that several cases arose in which this doctrine could be applied during his tenure. So basically, Lord Dalhousie was not the actual originator of this whole doctrine. But क्या हुआ था कि जब उनका tenure चल रहा था, it was a coincidence कि there were many cases in India which actually arose at that time in which this doctrine could be applied. Like you can take example of झांसी, कि जो झांसी के राजा थे उनकी जल्दी डेथ हो गई थी, तो इस वजह से उनको कोई सन नहीं था, तो उस एरिया का लॉर्ड डलहाउसी ने एनेक्स कर लिया था। सो बेसिकली ये डॉक्ट्रिन जो है वो एट्रीब्यूट क्यों किया गया लॉर्ड डलहाउसी को, बिकॉज इनके ही टाइम में सबसे ज़्यादा जो टेरिटरीज थी उनको इस डॉक्ट्रिन के अंडर एनेक्स किया गया था। तो जो इनसे पहले के रूलर्स थे
दे एक्चुअली ट्राइड, जिन्होंने ये डॉक्ट्रिन अप्लाई किया था अलग अलग स्टेट्स पे, सो दे एक्चुअली ट्राइड कि एनेक्सेशन जितना हो सके उतना अवॉइड किया जाना चाहिए. एनेक्सेशन वॉज ओनली अप्लाइड टू द स्टेट्स जहाँ पे अडॉप्टेड सन को बनाना बहुत ही मुश्किल था वहाँ का रूलर. वेदर could be the reason के वो जो सन था he was very notorious or he was not ready to accept the paramountcy of this British Empire. Could be many reasons, but Lord Dalhousie actually applied this doctrine in other way. He actually tried to annex as much as possible. उन्होंने ट्राई किया कि मैं जितना annexation कर पाऊँ उतना कर लूँ. उन्होंने ये कंसीडर ही नहीं किया कि एनेक्सेशन में अवॉइड करता हूँ और अगर हो सकता है तो मैं जो वो सन है उसी को रूलर बना देता हूँ और अल्टीमेट पावर अपना रखूंगा. उन्होंने ऑलमोस्ट हर स्टेट को जहाँ पे ये डॉक्ट्रिन अप्लाई हो रहा था वहाँ पे इस डॉक्ट्रिन को अप्लाई करके उस स्टेट को अनेक्स किया. इसीलिए लॉर्ड डलहौजी के नाम में हम ये डॉक्ट्रिन पढ़ते हैं, ऑल्दो इट इज नॉट हिज ओन क्रिएशन. So these are the states to which doctrine of lapse was applied. So it was Satara. In Satara, this doctrine was applied in 1854. In Jhansi and Nagpur in 1854. In Awadh in 1856. In Sambalpur, Odisha, and also in Jaipur, which is known as Bundelkhand. Also, Maharaja Ranjit Singh has annexed a few of his feudatory principalities on account of lapse. मतलब जो रंजीत सिंह थे उन्होंने भी काफ़ी सारी जो अपनी टेरिटरीज थी वो इसी बेसिस के ऊपर अंग्रेज़ों को दे दी थी. Likewise, the company in 1820 acquired a few pretty cis Satluj states on the absence of here. तो कुछ जो छोटे छोटे स्टेट थे जैसे सतलुज के आसपास के जितने छोटे छोटे स्टेट्स थे उनको भी ब्रिटिशर्स ने 1820 में इसी डॉक्ट्रीन के एट्रीब्यूशन पे अपने अंडर ले लिया था. So always remember, doctrine of lapse was related to adopted son. That adopted son could not be the heir of the area of which his father was the ruler. He didn't have the perfect right, like the right that we have. Okay, it was the power of the British के मतलब वो क्या था कि ब्रिटिशर्स की मर्जी पे था कि वेदर बनाए या नहीं बनाए. बट सिंस लॉर्ड डलहाउजी वॉज द रूलर एट दैट टाइम, तो लॉर्ड डलहाउजी ने ट्राई किया कि जितना ये अडॉप्टेड सन को हटाया जा सके, जितने टेरिटरीज को अनेक्स किया जा सके उतना वो अनेक्स करेंगे. बिकॉज एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, लॉर्ड डलहाउजी वॉज अ हार्ड कोर एक्सपेंशनिस्ट. ही वुड डू एनीथिंग to expand the empire of Britishers over India or over any other country or state. So by this we come to an end of this whole lesson. So I'll see you all in my next lesson, in which we will be discussing कि जब ब्रिटिशर्स ने अपनी पॉलिसीज़ अप्लाई करना शुरू कर दिया था इंडिया के ऊपर, अलग अलग इकोनॉमिक पॉलिसीज़ और पॉलिटिकल पॉलिसीज़, तो इंडियंस का क्या रिएक्शन था, क्या सिविल अपराइजिंग्स हुए, पीजेंट अपराइजिंग्स हुए, क्या क्या मुश्किलें देखनी पड़ी जिसकी वजह से लोगों ने रिवोल्ट करना स्टार्ट किया. सो वी विल कवर दैट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. सो अंटिल माय नेक्स्ट लेक्चर, प्लीज टेक केयर एंड बाय बाय.